Hello children, hope you're all doing good. Let's start today's chapter, Plants, the Food Producer. Learning objectives, types of leaves, parts of leaves and food for plants. Have you ever wondered how life is possible in the deep oceans? How plants get their food without sunlight? Or why are plants called producer? इन सभी के questions के answer हम let's find out in this chapter. When you feel hungry, you eat food. Animals do eat food when they feel hungry. All living beings need food to live. Plants also need food to live. But unlike animals, they do not eat food. Instead, they make their own food with the help of sunlight. Look around a garden. Most plants are green in color. They look green because of their green leaves. What makes the leaves green? Leaves have a green substance called chlorophyll that gives the green color. Green leaves need air, water and sunlight to make food. Sunlight provides the energy needed to make food. It is the chlorophyll that traps the sunlight. जब कभी आप हंग्री होते हो तो खाना खाते हो, है ना? एनिमल्स भी हंग्री होते हो तो खाना खाते हैं. सभी लिविंग बींग्स को खाने की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए. प्लांट्स को भी खाने की ज़रूरत होती है. बट फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि प्लांट्स जो हैं अपना खाना खुद से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. अगर आप कभी भी अपने आसपास गार्डन में देखेंगे, आप आसपास के ट्रीज देखेंगे, ज़्यादातर जो पार्ट्स होते हैं ना ग्रीन होते हैं कलर में. तो वो ग्रीन क्यों दिखते हैं? बिकॉज दे हैव अ ग्रीन पिगमेंट और अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल जो कि उनको ग्रीन कलर देता है. एंड इस क्लोरोफिल का काम क्या होता है? क्लोरोफिल का काम क्या होता है? टू ट्रैप द सनलाइट. सनलाइट को ट्रैप करेंगे तभी जो है लीव्स खाना बनाएंगे, राइट? फैक्ट फाइल. ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे प्रोड्यूस फूड. ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो खाना प्रोड्यूस करते हैं. पार्ट्स ऑफ अ लीफ. Leaf is a very important part of a plant. The flat part of the leaf is called the leaf blade. The main vein can be seen running through the center of the leaf. It consists of a double pipeline of cells. One carries water and minerals to all the cells of the leaf from the roots, and the other carries prepared food from the leaf to all the cells of the plants. A large number of side veins are seen emerging from or parallel to the main vein. On the underside of the leaf are small openings between the cells called stomata. They help in the exchange of carbon dioxide and oxygen gas. देखिए लीफ किसी भी प्लांट का ना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. क्यों? बिकॉज लीफ इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट. लीफ का काम होता है खाना बनाना. सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. तो देखिए लीफ का जो फ्लैट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड लीफ ब्लेड. इसके बाद इसके बीच में से एक वेन जाती है. दिस इज कॉल्ड द मेन वेन एंड इसे हम क्या कहते हैं? इसके बाद इसके साइड से आप जाती हैं आपके मेन, ये आपकी होती हैं साइड वेन्स, राइट? अब लीफ में क्या होता है कि इसके सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा. और स्टोमेटा का काम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस को एक्सचेंज करना. यानी कार्बन डाइऑक्साइड वो लेंगे एंड देन ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे. Types of leaves. You can identify a plant by the structure of its leaves. Different plants have different types of leaves. आप किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आप उसकी लीफ को देख लीजिए. तो देखिए सारी प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो डिफरेंट होती है. यहाँ पे आपको दी गई हैं डिफरेंट प्लांट्स की डिफरेंट लीव्स. Changing sunlight into food. Plants make food in their leaves. They are also known as the food factory of a plant. They need sunlight, carbon dioxide, water and minerals to prepare food. The roots absorb water and minerals from the soil and the stem carries these materials to the leaves. The leaves take in carbon dioxide from the air through stomata. The chlorophyll of the leaves trap the sunlight from the sun. This process is called photosynthesis. Photo means light and the synthesis means putting together. अभी मैंने आपको बताया फूड फैक्ट्री. लीव्स आपकी होती हैं फूड फैक्ट्री या किचन ऑफ द प्लांट बिकॉज दे मेक फूड फॉर द प्लांट. अब उनको सनलाइट की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, इसके अलावा वाटर एंड मिनरल्स की. वुड आपकी जो रूट्स होती हैं वो वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से एंड स्टेम जो है इन मटेरियल्स को कैरी करता है लीव्स तक. फिर लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं स्टोमेटा के थ्रू. जो क्लोरोफिल होता है लीव्स में वो सनलाइट को ट्रैप करता है एंड ये जो होल प्रोसेस होता है दिस प्रोसेस इज नोन फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर. हाउ डू प्लांट्स स्टोर फूड? Plants do not use all the food they make. They store some of the food in their roots, stems, leaves, fruits and seeds. This food is also used by the plants for their growth. We eat that part of a plant which has food stored in them. Plants prepare food in the form of a simple sugar called glucose. When plants store the food, the simple sugar is converted into starch.
प्लांट्स देखो जो है अपना खाना खुद से बनाते हैं, बट क्या वो सारा खाना यूज़ कर लेते हैं? नो, तो वो कुछ खाना जो है स्टोर कर लेते हैं या तो अपनी रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में, फ्रूट्स में एंड सीड्स में। ये जो फूड होता है ये प्लांट्स यूज़ करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, एंड ज़्यादातर फ्रूट तो ऑफकोर्स हम ही कंज्यूम करते हैं, यानी वी ह्यूमन बींग्स। प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं सिंपल शुगर में, जिसे कहा जाता है ग्लूकोज। लेकिन जब प्लांट्स इस फूड को स्टोर करते हैं तो जो सिंपल शुगर है वो कन्वर्ट हो जाती है स्टार्च में। Fact 5. Plants like cacti do not have leaves. Photosynthesis takes place in their green fleshy stems. Cactus आपको पता है ये डेजर्ट प्लांट है, एंड प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था कि डेजर्ट प्लांट अपना खाना कहाँ बनाते हैं? स्टेम्स में। Energy flow in living things. The sun's energy flows from plants to animals through food chains. When an animal eats a plant, it gets some of the sun's energy that was stored in the plant. Animals that do not eat plants still get the sun's energy. They get it by eating other animals that have eaten plants or plant products. To know more about the energy flow, look at the given diagram. Sun की एनर्जी आपकी फ्लो करती है प्लांट्स टू एनिमल्स, इसको बोलते हैं चेन को फूड चेन। तो देखिए जब कोई एनिमल एक प्लांट को खाता है तो उसको कुछ सन की एनर्जी मिलती है जो प्लांट में स्टोर थी। अब एनिमल जो प्लांट्स नहीं खाते उनको फिर भी सन की एनर्जी मिलती है। उन्हें कैसे मिलती है? जब ये दूसरे एनिमल को खाते हैं जिसने प्लांट खाया है या फिर प्लांट प्रोडक्ट। तो ज़्यादा जानने के लिए हम देखते हैं, डायग्राम आपको दिया गया है। सो दिस इज द फूड चेन। देखो ग्रास, इसको सनलाइट मिली, राइट, है ना, एंड इसके बाद आपका क्या है, ग्रास को खाया ग्रास होपर ने, देन ग्रास होपर को खाया फ्रॉग ने, देन फ्रॉग को खाया स्नेक ने, एंड स्नेक को खाया ईगल ने। यानी जो एनर्जी है सन की वो फ्लो होती रही इस तरह से। इन द अबव डायग्राम द ग्रास यूजेस द सन्स एनर्जी टू प्रिपेयर फूड, दे यूज सम ऑफ द एनर्जी एंड स्टोर द रेस्ट। When a grasshopper eats the grass, some of the energy stored in the grass goes into the grasshopper. When a frog eats the grasshopper, again some of the sun's energy is passed on to the frog. Similarly, this energy flows from the frog to the snake and then to the eagle. When animals eat food, energy is passed from one living thing to another. This shows how energy flows from one organism to another. ठीक है, तो क्या बताया, जैसे कि खाना बनाया सन की एनर्जी से, कुछ इसने स्टोर कर लिया, ओके, फिर ग्रास होपर ने खाया, उसको भी कुछ पार्ट मिला सन की एनर्जी का, देन उसको जो नेक्स्ट एनिमल ने खाया उसको भी थोड़ी सन की एनर्जी मिली। सो इस तरह से जो एनर्जी का है वो फ्लो होता रहता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर? Green plants give food in the form of vegetables, fruits, nuts and grains to animals. Animals cannot live without this food. Plants also release oxygen during photosynthesis and freshen up the air. This oxygen is used for human and animal breathing. In return, animals and humans breathe out carbon dioxide which plants use to prepare food. When animals die, their body gets decomposed in the soil and form important nutrients for the plants. So you can see that plants and animals depend on each other in many ways. प्लांट्स एंड एनिमल्स किस तरह से डिपेंडेंट है? देखिए ग्रीन प्लांट्स जो हैं हमें फूड प्रोवाइड करते हैं वेजिटेबल की फॉर्म में, या फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, या फिर ग्रेन्स, ये सब एनिमल्स कंज्यूम करते हैं। एनिमल्स जो है बिना फूड के नहीं रह सकते। प्लांट्स ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान, जिससे कि हम सभी उसमें ब्रीद इन करते हैं, राइट। अब इन रिटर्न क्या होता है कि जो एनिमल्स है या ह्यूमंस हैं वो क्या ब्रीद आउट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी ज़रूरत होती है प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए, है ना। तो इस तरह से, और जब एनिमल्स आपके डाई हो जाते हैं, उनकी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है सॉइल में, एंड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स बनाती है वो प्लांट्स के लिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से प्लांट्स एंड एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। फैक्ट 5. Mushrooms are not green and cannot make their own food. These plants depend on dead matter. मशरूम क्योंकि आपका एक नॉन ग्रीन प्लांट है, so it can't make its food. तो इसीलिए डिपेंडेंट होते हैं दूसरे डेड मैटर पे। Nature's balance. What would happen if the number of plants and trees become less than the number of animals? Oxygen and food will become scarce for animals. Animals will become homeless if forests and trees are cut down. In the same way, if the number of animals become less than the number of plants, there would not be enough carbon dioxide for plants to make their food. Thus, the balance in nature would be disturbed. It is very important to maintain a balance for life to exist on the earth. अच्छा, क्या होगा अगर प्लांट्स और ट्रीज जो हैं वो एनिमल्स से कम हो जाएं? तो फिर तो एक इम्बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन और फिर फूड क्या होगा, वो एनिमल्स के लिए कम पड़ जाएगा और एनिमल्स होमलेस हो जाएंगे अगर फॉरेस्ट को या ट्रीज को कट कर दिया जाएगा, है ना। तो इसी तरह से अगर एनिमल्स जो हैं वो कम हो गए तो नंबर ऑफ प्लांट्स क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, तो उनको इनफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा अपना खाना बनाने के लिए। इसीलिए जो बैलेंस है नेचर का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक बैलेंस बना के चलें, राइट।
Various wildlife protection programs have been started to protect the wild animals by creating forest reserves and sanctuaries. Programs like One Mahotsav promote the planting of trees and make people aware of the harmful consequences of cutting trees. If life on the earth has to go on, a balance in nature must be maintained. बहुत सारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, राइट. जैसे वन महोत्सव के बारे में भी आपने सुना होगा. हर साल क्या होता है, आपके रेनी सीजन के टाइम पे, स्पेशली जुलाई के टाइम पे क्या होता है कि ट्रीज़ प्लांट किए जाते हैं और लोगों को अवेयर किया जाता है अबाउट कटिंग ट्रीज़ के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं. ओके, तो अगर हम चाहते हैं कि लाइफ अर्थ पे स्मूथली चले तो देन वी शुड मेंटेन अ बैलेंस, राइट. समरी: all green plants make their own food. Remember that all green plants make their own food. That means no non-green plants do not make their own food. Green leaves receive water from the soil, carbon dioxide from the air and sunlight from the sun to make their food. This process is called photosynthesis. Green leaves contain chlorophyll which traps sunlight for photosynthesis. The extra food prepared by plant is stored as a starch in roots, stems, leaves, fruits and seeds. Plants and animals depend on each other. A balance between plants and animals is essential for life on the earth to go on. Remember that, children, green leaf में आपका chlorophyll होता है, and what is the function of chlorophyll? To trap sunlight for photosynthesis. So children, I hope आपको ये chapter समझ आया होगा, and इस chapter की practice अब आप खुद से करेंगे.